जो आपको शो हो जाती है अभी। सर अब हो रही है, सर हो रही है। चलें। अच्छा, तो so today we will start with actually there are two topics that we need to discuss today. The first one is approximating function and the second one is Butterworth filter. We'll start with the approximating function. Okay. Approximating function describe the transfer function of our filter h of j omega. Okay. Transfer function determines the performance of our filter, and the actually we design the transfer function based on the criteria given to us that what sort of low pass filter we need to design. Okay, so the design of transfer function is dependent on your choice of omega c, your choice of omega p, your choice of omega s, your choice of sigma, and your choice of epsilon. Okay, and approximating function actually tells you how good your transfer function is or how optimal your transfer function is. Okay, so in order to determine this optimality, there can be like 3 or 4 different criteria. In this lecture we will study only 2, and in today's lecture we will go through one of them. Okay, which is maximally flat magnitude response. Okay, I will come back to it in like minute or two. Furthermore, the choice of transfer function is not unique for a given filter constraint. So it could be possible that for the same requirements given to you in order to design a filter, each one of you come up with a different transfer function. Okay, so you must keep in mind that each one of that transfer function will be correct. So the filter design is not a unique solution altogether. जी जी सर वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। बाकी सबको हो रही है? यस सर हो रही है। फिर क्या करें उसामा भाई अब? चलिए सर मैं दोबारा मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, हो सकता है कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे कर लें। ओके ओके सर। सो the design of filter gives you non-unique solutions. Okay, and each of those solutions will be correct determining upon your optimality criteria. Okay, so before we proceed we have to specify the criteria of optimality. There are 2 criteria of optimality usually. Okay, but there are more than 2 as well. The first one is maximally flat magnitude response. Okay, so we are actually designing a low pass filter in which a certain information which is less than omega p will be passed through your filter, and all the information which is greater than omega s will be truncated, attenuated, or stopped. Okay, so the maximally flat magnitude response says that let h of j omega denote a magnitude response of an analog low pass filter of order k. Okay, where k is any integer, okay, other than 0. H of j omega is said to be maximally flat at the origin if it satisfies the given condition is that all the derivative of h of j omega should be 0 at omega equal to 0. Okay, now what does this equation tells me? Can anyone describe this last equation on this slide that I'm showing you? Anyone? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आती कभी कभी। अच्छा, क्या करें फिर बेटा इस मसले का हल? सर आप पढ़ाते थे, हम पढ़ते जाते हैं, इसका और कोई हल नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे उसका भी तो जवाब देना आप। ठीक है, अभी जो स्लाइड शो हो रही है इसके सबसे एंड में एक एक्सप्रेशन है। ओके, मैं आप में से चाहता हूँ ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रही है, आप इस एक्सप्रेशन से क्या समझ सकते हैं? आप ही बता दें अली मुरातब साहब। सर उससे आवाज नहीं गई ना। सर आई अच्छा मैडम, थिंक आपको आवाज आ रही है, आप बताएं फिर। जी जी सर डेरिवेटिव की कोई भी डेरिवेटिव जो है ना एच ऑफ जे ओमेगा का, वो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा। हाँ ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव आपको क्या बता रहा होता है? किसी भी फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं तो डेरिवेटिव क्या बताता है मुझे उसके बारे में? स्लोप। स्लोप। ओके, अच्छा ये तो आपका पहला डेरिवेटिव बताता है। दूसरा डेरिवेटिव आपको क्या बता रहा होता है? सर फंक्शन कितना मैक्सिमम है कितना मिनिमम है, मतलब ओके, और अगर ठीक है, और अगर आपकी स्लोप भी 0 है तो ये आपको फंक्शन के बारे में क्या बताती है?
हेलो सर हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, ये पता चलता है हमें इससे। हाँ ठीक है, ओके बिल्कुल। अगर आपके फंक्शन की स्लोप बिल्कुल जीरो है, इसका ना आपका फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है जो प्रोबब्ली एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, ओके। और अगर आपके फंक्शन के बाकी सारे डेरिवेटिव भी जीरो हैं, तो इसलिए आपको आपके फंक्शन के मैक्सिमास और मिनिमास बता रहे होते हैं, ओके। कि यूजली सेकंड डेरिवेटिव जीरो तब होता है जब या तो आपके फंक्शन का मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ओके ठीक है। अब ये एग्जैक्टली और हमारे पास जो कंडीशन मैक्सिमली फ्लैट मैग्नीट्यूड रिस्पांस की है वो ये है कि आपके फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं एक से लेके जितने भी बड़े डेरिवेटिव हैं वो जीरो होने चाहिए एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे। इसका मतलब कि इफेक्टिवली ओमेगा इज इक्वल टू जीरो के आसपास आपका जो फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, राइट? यस सर। ओके चलें, अब इसी चीज को मैं इस स्लाइड में मैंने थोड़ा सा क्लियर किया। स्लाइड सबको शो हो रही है? यस सर। Okay, so the expression shows that the derivative of h of j omega need to be zero at omega is equal to zero. Okay, basically स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर पे जो सर्कल के अंदर नंबर लिखा है ये बेसिकली स्लाइड नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकंड स्लाइड है, उसको मिक्स ना कीजिएगा सेंटेंस के साथ, ओके। अच्छा, डेरिवेटिव यूजुअली इज अ रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो मैंने ये दो सॉर्ट ऑफ, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, कि एक ऐसी लाइन जिसका डेरिवेटिव जीरो है मैंने उसको प्लॉट किया, और एक ऐसी लाइन जिसका डेरिवेटिव मैक्सिमम है मैंने उसको प्लॉट किया। इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है? हेलो सर। सर हेलो जी 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 सर आवाज आ रही है? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब नहीं देते आप लोग आगे से। सर वो मेरी वॉइस को पता नहीं क्या ग्लिच हो गई, क्या हुआ, वो आ नहीं थी रही। चलें आप अब बता दें आप, ठीक है। मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो दो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, ये क्लियर है, इनमें कोई इशू तो नहीं है? आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है? सर वो आपकी आवाज नहीं थी आ रही, तो मेरा भी चला गया था वो वॉइस, तो आप दोबारा कर देंगे प्लीज? जी जी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। बेसिकली हम वो मैक्सिमली फ्लैट मैग्नीट्यूड रिस्पांस को ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पहला डेरिवेटिव जीरो है तो ये आपको ये बता रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू जीरो के आसपास आपका जो फंक्शन है वो इफेक्टिवली एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है ठीक है। और यही चीज मैंने यहाँ पे इन दो एग्जांपल से सॉर्ट ऑफ शो करने की कोशिश की है कि अगर पहला डेरिवेटिव जीरो हो, ठीक है, तो आपका अगर जीरो हो तो स्ट्रेट लाइन के लाइन किस तरह की होती है फंक्शन की, और अगर पहला डेरिवेटिव मैक्सिमम हो तो लाइन किस तरह की होती है। और हमें पता है कि एक ऐसी लाइन जो कि पाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ओके, रादर अनडिफाइंड होता है, ओके। यस सर ठीक। ओके चले, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी स्लाइड पे अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली हम आज जो फिल्टर पढ़ेंगे बटरवर्थ फिल्टर, उसके लिए जो ऑप्टिमल क्राइटेरिया हमारे पास है दैट इज मैक्सिमली फ्लैट मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ओके। सो व्हाट वी वांट आवर बटरवर्थ फिल्टर टू डू इफेक्टिवली इज टू इंश्योर दैट इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पांस remains straight line near to omega is equal to 0, okay, till the omega p, okay. So as long as it is in passband domain, its magnitude response should effectively be a straight line. That's actually the main characteristics of a Butterworth filter, okay. Then we move forward to our third slide. Everyone can see the slide, okay? Yes sir. Okay, so in this slide I am introducing a Butterworth filter, okay. Butterworth filter is given by this general expression that you need to keep in your mind all the time, okay. H of j omega magnitude square is equal to 1 over 1 plus omega over omega c raised to power 2k, okay, where k can be the order of the filter, but the k needs to be more than 0. It can be 0. If you put k is equal to 0, then you effectively have a filter as 1 over 1, okay. Now if you see the plot that I am showing you in this slide at the bottom right, okay, you can actually see why Butterworth filter is called a maximally flat filter, okay. Is that you can see this bar where I've written this maximally flat, okay. In the maximally flat region, the amplitude response of your filter is straight line, almost straight line, okay. But afterwards, as long as it clears this point, then depending upon its order, the line comes down, okay. If order is k, then the line is coming down a bit slower, but as you increases the order, the line comes down at a bit faster rate. Anyway, everyone can see that, okay. Yes sir. Okay, so this is your low pass filter which will pass the information
which is less than omega p with almost maximal flat response. Okay, there will be no attenuation, no ripple, no nothing, maximally flat, almost straight line. Okay, and if you have order k1, k is equal to 1, then your maximally flat response after omega p will start to decay until it reaches omega s, and then it will stop information, and probably there will be some ripples in omega stop band range, but there are no ripples in case of Butterworth filter in your pass band domain. Okay, now my next question to you is, h of j omega square, is it even function or odd function? What do you think about it? Even. How? सर किसी भी नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो, इवन एक मिनट जी जी बोलें बोलें। जी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम आंसर। हेलो सर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इवन ऑड नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम फर्स्ट करें 3 का स्केयर लेते हैं के की वैल्यू में तो वो तो 9 हो जाएगा, और अगर 2 का लेते हैं तो वो 4 हो जाएगा। तो -3 का क्या होगा? सर वो भी 9 होगा, लेकिन सर वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो +3 कब से पॉजिटिव? बेसिकली किसी भी फंक्शन का जब आप स्केयर ले लेते हैं तो इफेक्टिवली इवन फंक्शन बन जाता है उसके बाद, बेशक वो नेगेटिव हो बेशक पॉजिटिव हो। लेकिन सर इवन और तो वो नहीं था कि इवन नंबर्स ये होते हैं, ऑड ये होते हैं। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि अगर आप h ऑफ j ओमेगा की जगह कोई पॉजिटिव ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे या नेगेटिव ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो सेम मिलेगी, क्योंकि आप उसका स्केयर ले रहे हैं। इवन ही रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो h ऑफ j ओमेगा मॉड स्केयर जो हमारे पास वो एक इवन फंक्शन होगा। उसके बाद लास्ट टाइम we did study this epsilon, this sigma. Okay, everyone remember that? हेलो बेटा, मैं कोई भी बात पूछता हूँ उसके बाद कोई 5 मिनट का एक पॉज आ जाता है जिसमें कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा होता। मुझे लगता है कि मेरा अपना माइक ही म्यूट हो गया। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछा करूँ तो बेशक उसका जवाब ना भी आता हो, आगे से कुछ चूं चां किया करें कि मुझे पता चले आप मौजूद हैं वहां पे। सर जैसे आपकी आवाज हम आवाज देते हैं तो मेरी आवाज 3-4 सेकंड के डिले के बाद पहुंच रही है आपके पास? यस सर, डिले के साथ आ रही है। अच्छा चलें, ओके। हमने लास्ट टाइम ये एप्सिलॉन और सिग्मा वगैरह देखे थे और मैंने आपको कहा था कि ये बेसिकली डिटरमिन ये कर रहे होते हैं कि आपके पास पास बैंड में एम्पलीट्यूड के पास कितना फ्रीडम है वेरी करने का, और आपके पास टॉप बैंड में एम्पलीट्यूड के पास कितना फ्रीडम है वेरी करने का। ओके, सो इन द नेक्स्ट 2 slides that you can see right on the left of this plot, describe the relation between pass band frequency and epsilon, and also between stop band frequency omega s and sigma. Okay, you also need to keep in your mind these 2 equations as well. Okay, if everything is दो clear, इक्वेशंस हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब इसकी पास बैंड की इस फिल्टर के लिए या हर फिल्टर के लिए? बेटा बटरवर्थ फिल्टर के लिए ये 2 इक्वेशन स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। इवन बटरवर्थ फिल्टर के लिए जो उसका ये ट्रांसफर फंक्शन है ये भी स्टैंडर्ड है। अच्छा ओके, अच्छा। So if everything is clear on this slide, then I will move to the next slide, okay, which is 4th slide. Okay, over here first of all I will tell you some properties of Butterworth filter. As we have seen that Butterworth, the main characteristics or the main advantage of Butterworth filter is that it gives you a maximally flat amplitude response in a pass band domain. Okay, so this means there will be no ripples in pass band. Okay, so if your filter demand is that there should be no ripples in pass band domain, then you effectively should go to the Butterworth filter. Okay, furthermore, the higher the order, जी रिपल्स मीन मतलब नॉइज या नहीं, रिपल्स का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का ऊपर नीचे वेरी होना।
सर वो जो उसने जब के की वैल्यू जब 1 होगी 2 होगी 3 होगी वो तो उसमें डिके आना शुरू हो जाएगा, वो रिपल्स की तरह ही होगा ना, वो तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है क्योंकि देखें कमिंग बैक टू दिस स्लाइड। ओके, स्लाइड शो हो रही है आपको? जी सर। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने एक बार सा बनाया हुआ रेड कलर में जिसके ऊपर मैंने मैक्सिमल फ्लैट लिखा हुआ है। ओके, यस सर। अच्छा, इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? क्या मतलब मैक्सिमम है? हाँ, मतलब स्ट्रेट लाइन है, वेरी कर रही है, क्या हो रहा है? ये तो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधी है। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इस स्ट्रेट लाइन के बजाय यहाँ पर जो लाइन है वो एसी सिग्नल की तरह की वेरी लाइन होती। ओके, जैसे कि आई यस कैन शो यू ऑन व्हाइट बोर्ड। किधर गया व्हाइट बोर्ड हमारा? Okay, so everyone can see the whiteboard, right? नो सर। जी Okay, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? जी ओके, सो जो ये ब्लैक लाइन है ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने वो पहले की थी प्लॉट, और आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक लाइन है टिल द पॉइंट जहाँ पे मैंने छोटा सा सर्कल लगाया वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमली फ्लैट मैग्नीट्यूड रिस्पांस है। इसके ऊपर ही मैंने ग्रीन कलर की लाइन भी लगाई है जिसको मैंने हल्का सा ऊपर नीचे मूव किया है। ये बेसिकली रिपल्स हैं। ओके, यस ठीक है, सो रिपल सिर्फ ये शो कर रहे होते हैं कि आपका मैग्नीट्यूड जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। ओके, है अभी भी ये पास बैंड फिल्टर ही है, लो पास फिल्टर ही है, लेकिन आपने मैग्नीट्यूड को स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होने दे रहा, उसे थोड़ा सा वेरी करके थोड़ा सा रिपल्स के थ्रू फॉर्म में होने दे रहा है पास। ठीक है, तो रिपल्स और स्ट्रेट लाइन का जो फर्क है ये आपके ज़हन में मालूम होना चाहिए। ठीक है, जी। चलें मैं इसको तो अब खत्म मतलब कर हम दूं। सिर्फ स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं वहां से, उसके नीचे नहीं शुरू कर रहे, मतलब एक आपने पॉइंट नहीं, ले अभी लिया हम उसके पास नीचे। बैंड में ही है, अभी हम स्टॉप बैंड में अच्छा नहीं अच्छा गए। अच्छा ठीक है, और जी बटरवर्थ फिल्टर में जब आप स्टॉप बैंड में जाते हैं तो वहां पे रिपल्स आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ पास बैंड में हैं, अभी हम ओमेगा पी से पीछे पीछे ही हैं। ओके सर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई तो फिर अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ओके, तो वापस कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स। The properties of Butterworth filter, there are no ripples in pass band. Okay, furthermore, higher the order, faster is the decay. अच्छा, जब हमने एक पास बैंड में अपनी फ्रीक्वेंसी को, मतलब अपने इंफॉर्मेशन कंटेंट्स को पास कर दिया है, उसके बाद हम चाहते हैं कि पास बैंड से जो आपका फिल्टर है वो जल्दी से जल्दी स्टॉप बैंड में आ जाए। ओके, हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था कि जितना पास बैंड और स्टॉप बैंड में डिफरेंस कम होगा उतना ही आपके फिल्टर का रिस्पॉन्स अच्छा है, उतना ही आपका फिल्टर आइडियल फिल्टर के करीब तरीन है। ओके, सो बटरवर्थ फिल्टर के केस में ये चीज अचीव की जा सकती है अगर आप अपना ऑर्डर बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे कम ऑर्डर वाली लाइन है k = 1, वो सबसे देर से नीचे आ रही है, और जैसे जैसे आप अपना ऑर्डर बढ़ा रहे हैं जो आपके पास मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स से लाइन नीचे आ रही है वो जल्दी नीचे आ रही है। ओके, ये सब कुछ क्लियर है, एविडेंट है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितना ऑर्डर ज्यादा होगा आपका फिल्टर उतनी ही जल्दी पास बैंड डोमेन से स्टॉप बैंड डोमेन में आता है। ओके सर जी बेटा, सर हम ये बटर बैंड फिल्टर क्यों यूज करते हैं? बेटा हम ये लेक्चर ही क्यों पढ़े हैं? नहीं सर, स्टॉप बैंड की पता चल रहा था, इसके नहीं पता चल रहा ना कि हम क्यों ये स्टडी कर रहे हैं। हम कौन सा फिल्टर पढ़े? मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है। सर बटरवर्थ फिल्टर। अच्छा इससे पहले क्या पढ़े थे? स्टॉप बैंड पढ़े थे इससे पहले। इससे पहले लो पास फिल्टर पढ़े थे हम। हाँ वही सर, सॉरी सर, लो पास। ठीक है, लो पास फिल्टर क्या करता है?
सर जैसे उसके आपने वो 3 प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर ओमेगा सी से भरा 2 π/t से भरा और हाउ से भरा होगा तो उसकी ऐसी वे में आपका जो इनपुट होगी वही आउटपुट के मिलती जुलती होगी, या जो उससे लेस होगा। उसकी समझ आ रही थी, इसकी समझ नहीं आ रही कि हम क्यों पढ़े। बेटा वो बेसिकली एक आइडियल फिल्टर का जब आपने रेक्टेंगुलर पल्स पास की थी वो रिस्पॉन्स था जो आप बता रही हैं मुझे, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, वो एक आइडियल फिल्टर था। अब हम प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं खुद, ठीक है? सही है। ठीक है, नहीं आपको नहीं मुझे लगता क्लियर, आप होपफुली जब आप लेक्चर को दोबारा एक बार देखेंगे रिकॉर्डिंग तो शायद आपको क्लियर हो जाए बात, ठीक है? अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने जो, और ये आप लास्ट टाइम लेक्चर की बात करें, इवन जब लास्ट टाइम लेक्चर आया तब हमने ये देखा था कि जब हम फिल्टर डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो उसकी पास बैंड डोमेन है उसमें एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा अलाउ करते हैं, थोड़े से रिपल आ जाएं, ठीक है, एप्सिलॉन तक। फिर जब वो उसके बाद डिके करके आपके पास स्टॉप बैंड रीजन में आ जाता है, क्योंकि लो पास फिल्टर में 2 ही आपके पास होते हैं रीजन, एक पास बैंड एक स्टॉप बैंड, ठीक है? जब वो स्टॉप बैंड डोमेन में आ जाता है तब हम एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि थोड़ा सा वेरी कर दे सिग्मा तक, और ये एप्सिलॉन और सिग्मा जो होते हैं ये आपके ओमेगा पी और ओमेगा एस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जो ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच में जो गैप होता है उसे हम ट्रांजिशन बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है? और एक अच्छे फिल्टर के लिए ट्रांजिशन बैंडविड्थ कम से कम होनी चाहिए, ओके? अब उसी पॉइंट को लेकर मैं अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास ये जो अभी लाइन लगी हुई है, आपके पास जो सामने प्लॉट लगा हुआ है एच ऑफ जे ओमेगा मॉड का अगेंस्ट आपके पास ओमेगा, इसमें जो लाइंस हैं ये डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? अगर ऑर्डर बड़ा होगा तो जल्दी छोटा होना चाहिए। मैडम ऑर्डर छोटा क्यों होना चाहिए? बड़ा होगा तो जल्दी पहुंचेगा। सर डिके हम जल्दी करवाना तो फिर तो बड़ा ही होगा, अगर देर से करवाना है बड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताएं, हम चाहते हैं डिके जल्दी हो कि देर से, जल्दी हो कि देर से हो? जल्दी हो। जल्दी हो, सब क्लियर हैं इस पे, यूनानिमस हैं? कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो चाहता है कि डिके देर से हो? सर वो जल्दी, और उसका फायदा क्या होगा हमें, मतलब क्या अगर देर से करवाएंगे तो? अगर आप देर से कराएंगे जैसे k इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि जो ओमेगा p और ओमेगा s के बीच में ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो ज्यादा होगी। अगर आप डीके जल्दी करवाएंगे तो इसका मतलब ओमेगा p और ओमेगा s के बीच में जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो कम होगी। अब ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जितनी जल्दी आप पास बैंड से स्टॉप बैंड में आ जाएंगे उतना ही बेहतर है, ओके? अच्छा, इसका मतलब है कि पहली 2 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, पहले मैं सेकंड को रिपीट कर दूं, हायर द ऑर्डर फास्टर इज द डिके, ओके? थर्ड वन इज स्टिल नॉट द फास्टेस्ट डिके। ज़हन में ये मत रखिएगा कि अगर हम ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो हमें बहुत ही फास्टेस्ट डिके मिल जाएगा। ऐसे फिल्टर्स मौजूद हैं मार्केट में जो आपको बटरवर्थ फिल्टर से भी ज्यादा फास्ट डिके देते हैं, ठीक है? कि आपका जो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली पास बैंड से स्टॉप बैंड में आ जाता है, ओके? जैसे कि शेबिशेव फिल्टर है, लेकिन शेबिशेव फिल्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपको मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं देता, वो आपको थोड़े बहुत रिपल्स देता है पास बैंड डोमेन में, ओके? सो हर फिल्टर के अपने प्रोज है कुछ और कुछ अपने कॉन्स हैं, और ये चीज हमें सॉर्ट ऑफ टेक इनटू क्वेश्चन लेनी पड़ती है जब अपना फिल्टर डिजाइन कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सर ऐसा होगा कि एक सवाल भी जी पूछे कैसा होगा? सर मतलब कि एक स्टेज तो रीच होएगी ना कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जैसे क्या कहते हैं वो, मतलब जितना मर्जी हम वो उसको ऑर्डर को बढ़ा दें तो वो बिल्कुल लाइन के पैरेलल हो जाए, जो वाई एक्सिस के पैरेलल जो डिके है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि 2000-3000 ऑर्डर का फिल्टर डिजाइन कौन करेगा और से इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सर मतलब वो आपने जिस तरह वो आपको पता के है से लाइन बनाई है वो मैं आपको बिल्कुल बताता उसके पास होगी कि हर एक ऑर्डर इंक्रीज करने से अपने फिल्टर की जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बढ़ा रहे हैं आप, ओके? और आपको पता है कि मतलब प्रोबेबली आप एक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। प्रोबेबली शायद क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बढ़ के अगर 3rd डिग्री की हो जाए तो आप शायद कुछ हिट एंड ट्रायल से उसको हल कर सकते हैं, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऑर्डर की इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। अब 20,000 ऑर्डर की इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा? जी सर, ये बात तो है। नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो हम ऑर्डर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? आपकी बात ठीक है, अगर हम ऑर्डर बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, बट आपको अपनी कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी पड़ती है कि आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, ओके? अच्छा, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ बटरवर्थ फिल्टर। अब मैं आगे चलता हूँ, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? नो सर। नो, ओके।
अब हम एक्चुअली डिजाइन पे चलते हैं. ओके, in order to design a filter we need to know the transfer function in Laplace domain. okay, basically transfer function उसका h of s होता है, ठीक है, और Laplace domain का मतलब है कि आप अपने फिल्टर को एनालॉग डोमेन में डिजाइन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस डोमेन में डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है. हमें ये पता है कि j ओमेगा जो होता है वो s के बराबर होता है, और यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू s ओवर j. ओके, अच्छा, अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या ट्रांसफर फंक्शन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में h ऑफ j ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसका Laplace ट्रांसफॉर्म से क्या रिलेशन होता है वो इस इक्वेशन से क्लियर है, जो कि m वाली इक्वेशन के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, कि अगर आपने Laplace ट्रांसफॉर्म को h ऑफ s और h ऑफ माइनस s को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया और s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट कर दिया, तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड स्क्वायर आएगा जो आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन का कैलकुलेट किया हुआ है. ओके, और बेसिकली ये जो m इक्वेशन है इस प्लॉट में, ये बेसिकली सेम इक्वेशन है जो मैंने यहाँ से ली हुई है, ये आपके पास ये बटरवर्थ की जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, सिर्फ मैंने ओमेगा की जगह s ओवर j पुट कर दिया. ओके, किसी को इश्यू तो नहीं यहाँ पे कोई? नो सर. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इस m इक्वेशन में जो k है ना आपके पास, ये ऑर्डर है, ठीक है, अपने पास ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है, क्या बड़ा k है, छोटा k नहीं है, ये भी अपनी चीज के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है. अच्छा, अब ये जो m वाली इक्वेशन है इसमें ओमेगा c को फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं 1 ले लेता हूँ फॉर द टाइमिंग. ओके, ठीक है, और जो ये जो बड़ा k है इसको मैं n से रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि क्योंकि आगे एक और वेरिएबल आएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोनों आपस में कंफ्यूज हों, ठीक है. तो इस m वाली इक्वेशन में बड़े k को हम n ले रहे हैं, n क्या है हमारे पास ऑर्डर, और जो ओमेगा c है उसको हम 1 ले रहे हैं, ओमेगा c हमारे पास क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है. यस सर. ओके, फिर हम आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास 5th स्लाइड है. मैंने उसी को दोबारा एक बार लिख लिया, ओमेगा सी को जब मैंने 1 लिया तो ओमेगा सी गायब हो गया, और बड़े के की जगह जब मैंने n लिखा तो वो 2n हो गया, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनी है वो ये है 1 ओवर 1 प्लस s ओवर j होल रेज टू पावर 2 ऑफ n. ठीक है, अच्छा, अब ये एक आपके पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, और इस ट्रांसफर फंक्शन से अगर हमने पोज निकालने हो तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट कर देते हैं. बिल्कुल, तो वही मैंने इस एक्सप्रेशन में किया है कि डिनोमिनेटर में जो चीज है उसको मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया है, और फिर यहाँ से मैं s की वैल्यूज निकालने की मैंने कोशिश की है. ठीक है, पहले 1 ओवर s ओवर j रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 0, 1 उस तरफ गया वो माइनस हो गया. ठीक है, और इधर से मैं j को भी उठा के ऊपर ले गया हूँ, इधर j डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके j न्यूमरेटर में हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बनी s रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू -1 इंटू j रेज टू पावर 2n. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिन्हें मैंने ना a और b इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इनमें से पहली आइडेंटिटी ये है कि -1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर j पाई ब्रैकेट में 2 इंटू k -1 ब्रैकेट बंद. अच्छा, अब ये वाला जो k है ये छोटा k है, अपने पास ध्यान में रखिएगा. ठीक है, इसका फिल्टर ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक आर्बिट्ररी नंबर है जिसके वैल्यू 0 भी हो सकती है. आप इन नंबर में से k की कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी उठा के इस a इक्वेशन में रखेंगे, आपके पास आंसर -1 ही आएगा. अभिषेक चेक कर लें इसको अभी. ओके, यस सर. ठीक है मैडम, सितारा सेटिस्फाई हो रही है ये ए इक्वेशन के की ऑलमोस्ट हर वैल्यू के लिए? यस सर. किया आपने? जी सर, किया है. अच्छा जी, किया. ओके, ठीक है. अच्छा, और दूसरी इक्वेशन जो है जो कि बी है सर जे में क्या पुट करेंगे? इस सवाल का, खूबसूरत सवाल का मैं क्या जवाब दूं आपको? जे क्या होता है? तो जे तो है ना इमेजिनरी नंबर. तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे आप? ये -1 अंडर रूट है, कुछ नहीं पुट करना आपने यहाँ पे. ओके, ठीक है, मतलब मैं ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर e रेज टू पावर j पाई से की कोई टर्म हो, इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप? हेलो सर, आपने क्या कहा है? मैं ये मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो क्वेश्चन ए है, ठीक है, इसमें j की जगह क्या पुट करना है. ठीक है, अब j की जगह तो हम कुछ नहीं पुट कर सकते, j की जगह तो -1 अंडर रूट ही होता है. लेकिन अगर आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन हो जैसे कि ये a है और हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना हो, तो हम क्या करते हैं? सर लॉग लेते हैं आई थिंक. नेचुरल लॉग आई थिंक. यार, अब सब लोग अपनी एकेडमी को नहीं शुरू कर देते? इतना बेहतरीन नॉलेज लेके दुनिया में घूम फिर रहे हैं आप.
हेलो सर जी। सर नेचुरल लॉग होते थे मैथ के जो क्वेश्चन थे उसमें। मैडम यहाँ पे नेचुरल लॉग क्यों लेंगे हम? ये यूलर आइडेंटिटी है आपके पास, e रेज़ टू पावर j पाई x है, इसे आराम से लिखें cos पाई x प्लस j sin पाई x, और cos को भी वैल्यूएट कर लें, sin को भी वैल्यूएट कर लें, इसमें क्या मुश्किल बात है? हेलो यस सर। जी। Yes, वैसे sir. इस वक्त और भी कोई तरीका है जो आप लोग अभी मुझे बता रहे हैं, पता नहीं नेचुरल लॉग और कौन सा लॉग? नहीं सर सही है, यूलर आइडेंटिटी। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन बी है, ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपको ये बता रही होती है कि जो j है बेसिकली वो आपके पास e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2 के बराबर होता है, ऐसा ही होता है? जी सर। e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2 कैसे वैल्यूएट होगा? ये ऐसे वैल्यूएट होगा, इसे लिख दें e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2 इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 प्लस j sin पाई बाय 2, ऐसा ही है? जी सर। cos पाई बाय 2 किसके बराबर होता है? 0 0। sin पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 किसके बराबर होता है? 1 1 1 j से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर j आ गया। ओके, तो ये जो a और b हैं ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। अब इन इक्वेशन a और b को मैं एग्जैक्टली जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना s रेज़ टू पावर 2n इज इक्वल टू -1 इनटू j रेज़ टू पावर 2n, उसमें पुट करूंगा, ठीक है, ताकि कुछ चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएं। ओके, it is worthwhile to note that the order is n and small k is an arbitrary number, ठीक है। स्मॉल k सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन a में ये फ्रीडम देने के लिए कि आप छोटे k की कोई भी वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर -1 ही आएगा। इस पूरे सिनेरियो में हमारे पास जो फिल्टर ऑर्डर अभी तक वो स्मॉल n ही चल रहा है, ठीक है, उसे स्मॉल n ही रहने दें, और जो स्मॉल k है वो एक आर्बिट्ररी नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने s की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है और इक्वेशन a और b को हमने यूज करना है, जो इक्वेशन a एंड b मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मैं आता हूँ इस स्लाइड पे। अब हमने उसी को उस क्वेश्चन में पुट किया, s रेज़ टू पावर 2n इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर j पाई इनटू ब्रैकेट 2k - 1 डॉट e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2 ब्रैकेट में 2n। क्लियर सबको ये? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब जब जो दो e आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो होता ही है कि उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। मैंने पावर्स को आपस में ऐड किया, ठीक है। फाइनली मैं इस एक्सप्रेशन तक पहुंचा हूं जो कि एक्सप्रेशन c है, which says s is equal to e raised to power j pi ब्रैकेट में 2k - 1 प्लस n over 2n for k is equal to 1 2 3। अच्छा, अब इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि n क्या है, स्मॉल n क्या चीज है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ फिल्टर। ऑर्डर ऑफ फिल्टर, ठीक है। और स्मॉल k एक आर्बिट्ररी नंबर है जिसकी कोई भी वैल्यू अंदर कर सकते हैं पुट आप, ठीक है। फिर इक्वेशन c को ही आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जी, आपने कहाँ पुट किया था इसको, ये जो e रेज़ पर j पाई बाय 2 इनटू 2n, ये कहाँ पुट किया? मैंने कहीं पुट नहीं किया, मैंने सिर्फ मतलब इवैल्यूएट किया है। multiply मैंने ये जो पिछली स्लाइड में क्वेश्चन a एंड b है, यहाँ से -1 और j की वैल्यू को इससे ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट किया है। मतलब -1 की जगह e रेज़ टू पावर j पाई 2k - 1 लिख दिया और j की जगह e रेज़ टू पावर j पाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2n लिख दिया और उसको आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन a एंड b अपने से बिल्कुल ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट हुई हैं और पुट होने के बाद फाइनल रिजल्ट मुझे मिला क्वेश्चन c की फॉर्म में। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन सी और जैसे नीचे वाली क्वेश्चन है ये दोनों सेम है। आपने अगर क्वेश्चन सी को वैल्यूएट करना हो तो आप यही करते हैं, आप उसे कॉस और साइन में ब्रेक कर देते हैं और कॉस के जो आर्गुमेंट है वहां पे पुट कर देते हैं चीजें और साइन के आर्गुमेंट पुट कर देते हैं, कुछ जीरो माइनस हो जाती हैं और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ओके, जो काम की चीज है यहाँ पे सारी सारी वो ये है कि जो क्वेश्चन सी है वो आपको बता के रही है कि आपके पोल्स किस तरह के हैं। कोई बंदा मुझे क्वेश्चन सी के बारे में बता सकता है कि ये आपको एस के बारे में क्या बता रहा है, क्योंकि ऐसी मेरे पास बेसिकली पोल्स हैं। हेलो क्वेश्चन रिपीट करना था जी। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन सी पे कोई बंदा रोशनी डाल सकता है अपने नॉलेज की बेस पे, ये क्या क्या बता रही है आपको? ऑर्डर तो बताएगी। ऑर्डर तो स्मॉल है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं। हम क्वेश्चन सी की बात करें। क्वेश्चन सी है s इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर j पाई ब्रैकेट में 2k - 1 प्लस n over 2n
for k is equal to 1 2 3 and so on. ये क्या बता रहा है आपको पोल्स के बारे में? कोई आलम फाजल इस क्लास में हो? सर एंगल के बारे में बता रहा है क्योंकि cos सर्कल होता है और के sin लॉन्ग है, सर्कल अच्छा, के सर्कल के ठीक है। ये बात ठीक की है। देखें, जब भी कभी आपके पास किसी भी चीज का आंसर e रेज़ टू पावर j पाई की फॉर्म में आ रहा होना, ठीक है, तो e रेज़ टू पावर j पाई के पीछे जो एम्पलीट्यूड लगा होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब ये जो चीज भी आपसे प्लॉट करवाने को कह रहा है वो बेसिकली यूनिट सर्कल के ऊपर ही कहीं पे प्लॉट हो रही है, ओके। मतलब आप एक यूनिट सर्कल का यूनिट रेडियस का बनाएंगे सर्कल, और इस सर्कल की जो लाइन है, जो सर्कल का पेरीमीटर है, इसके ऊपर कहीं आपके वो पोल्स मौजूद हैं, ठीक है। आगे e रेज़ टू पावर j पाई के अंदर वाली जो चीज है वो बेसिकली आपको एंगल बता रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन सी इफेक्टिवली आपको ये बता रही है कि आपके पास बटरवर्थ फिल्टर के जब भी आपने पोल्स प्लॉट करने हैं ना, आपने दो कंडीशंस अपने ज़हन में रखनी है, ओके। सबसे पहले ये कि जितने भी पोल्स होंगे डिटरमिन कर रहे होंगे आपके ऑर्डर पे, ओके। आपका जो भी ऑर्डर होगा उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर ऑफ पोल्स आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। मतलब अगर ऑर्डर 1 है तो पोल्स कितने होंगे? 2 होंगे। 2 होंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर 2 है तो आपके पास 4 पोल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, और ये सारे के सारे पोल्स जो है एग्जैक्टली यूनिट सर्कल के ऊपर ही पड़े होंगे, जैसे कि जो सबसे नीचे वाली है ना, मैंने पिक्चर जो मैंने 3 सर्कल्स बनाए उनमें देख भी सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर 1 है तो मैंने 2 पोल्स बनाए, एक +1 पे एक -1 पे। क्लियर हो गया? सबको शो हो रहा है ये? जी शो हो रहा है सर, शो हो रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो भी ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास पोल्स बनेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आपने अपने ज़हन में ये रखनी है कि वो जितने भी पोल्स आपके पास बनेंगे उन्हें आप यूनिट सर्कल पे जब भी प्लॉट करेंगे वो हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग एक दूसरे का मिरर होंगे। सर दोबारा बोलना आपकी सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि आपके पास पोल्स कितने होंगे, ठीक है। आपके पास पोल्स होंगे, आपका जो भी ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। जैसे अगर ऑर्डर 2 है तो पोल्स होंगे 4, अगर ऑर्डर 3 है तो पोल्स होंगे 6, ठीक है। और अगर ऑर्डर 1 है तो पोल्स होंगे 2, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आप अपने ज़हन में रखनी है कि आपके जो पोल्स होंगे वो वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज होंगे एक दूसरे का, ठीक है। मिरर इमेज का मतलब है कि जो वाई एक्सिस की जो लाइन है, ठीक है, जो पोल उसके लेफ्ट साइड पे जहां पड़ा होगा वो राइट साइड पे भी एग्जैक्टली वहीं पड़ा होगा, उसका मिरर इमेज होगा। जैसे n = 1 के केस में देख लें, हमारे पास 2 पोल्स हैं, एक +1 पे एक -1 पे। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या ये वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज हैं एक दूसरे का? जी सर, यस सर। जी। अब n = 2 के सिनेरियो पे आ जाए। n = 2 के सिनेरियो में मेरे पास 4 पोल्स बनेंगे, ठीक है। अब उन 4 पोल्स को आपने इस तरह अरेंज करना है कि वो वाई एक्सिस के अगेंस्ट अलोंग एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाए। अब n = 2 के केस में मैंने पोल्स जहां लगाए हुए हैं ये मिरर इमेज हैं एक दूसरे का। सर आपने भी कहा जी सर। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने n = 3 में 8 पोल्स बनाए हैं, 4 एक साइड पे 4 एक साइड पे, तो फिर तो वो पावर में चलेगा ना, 2 के बाद 2 2 1 2 3 ऐसे हो गए फिर तो पोल्स। मैं अभी n = 3 को दोबारा देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। वहाँ पे 4 नहीं होने चाहिए थे, 6। ये प्रॉब्ली जो केस बन गया ये n = 4 के लिए बन गया, ओके। लेट मी वेरीफाई, एक सेकंड है मुझे बस आप। जी बेटा, ये जो आखिरी सिनेरियो है ना n = 3, ये बेसिकली n = 3 नहीं है, ये n = 4 है, ओके। तो यहाँ पे आप अपने पास कर लें करेक्शन, थोड़ी सी गलती हो गई, ये n = 4 का केस है, ठीक है।
n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। सबको आवाज आ रही है मेरी? एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी। ये जो आपने n इज इक्वल टू 2 में जो 4 पोल्स दिए हैं ये किस लोकेशन पे पड़े हुए हैं? जैसे n इज इक्वल टू 1 पे, एक +1 पे पोल है, एक -1 पे है, तो n इज इक्वल टू 2 में ये किस पोजीशन पे पड़े हुए हैं आपने कैसे पता किया? मैंने अभी लोकेशन मालूम नहीं की, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी अपने ज़हन में जो फिलहाल रखा है, सबसे पहले ये डिसाइड किया है कि मेरे पास पोल्स कितने होने चाहिए। वो 4 होने चाहिए। उस पे आपका मेरा इत्तेफाक है? जी सर। अच्छा, अब उसके बाद मैंने इस पोल्स को यूनिट सर्कल के ऊपर कहाँ रखना है, मैंने वो डिसाइड करना है। मैंने रखना वहां पे है कि वाई एक्सिस के अलोंग जब मैं देखूं तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ऐसा ही है? जी, मिरर इमेज तो है। मिरर इमेज तो है। मिरर इमेज होने के लिए जरूरी है कि मैं दोनों तरफ इनको +45 -45 पे रखूं। और कोई ऑप्शन है मेरे पास? नो सर। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है। अगर मैं इस तरफ भी +60 पे रखूं, उस तरफ भी -60 पे रखूं, फिर भी कोई मसला तो नहीं ना? मिरर इमेज तो फिर भी होगा। ओके जी सर, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब एक लास्ट कंडीशन आती है, थर्ड वाली। थर्ड वाली कंडीशन ये है कि हर पोल के बीच में जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब हर पोल का दूसरे पोल से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए एंगल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब लास्ट चीज आई मेरे पास कि अगर मैं +45 और -45 पे नहीं रखता तो फिर इन पोल्स के बीच में जो एंगल है वो बराबर नहीं रहेगा। अब n इज इक्वल टू 2 के केस में देखें कि हर पोल दूसरे पोल से 90 एंगल पे पड़ा हुआ है। ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। तो सर जो n इज इक्वल टू 4 है, इस केस में कैसे पता चलेगा कि कितने एंगल पे रखना है हमें? जैसे हमें यहाँ पे पता चल गया कि 45 का एंगल होगा या 60 का होगा, n इज इक्वल टू 4 में कैसे पता चलेगा? उसमें तो डिवीजन काफी ज्यादा है। आपकी बात ठीक है। n इज इक्वल टू 2 के केस में टोटल पोल कितने बने थे हमारे पास? 4 Four. बने थे। टोटल बने थे 4। ठीक है, और बेसिकली आप करते ही हैं कि आप 180 को मतलब 180 को 4 से कर देते हैं डिवाइड। आंसर क्या आएगा इसका? फोर्टी फाइव आएगा। बिल्कुल 45 एंगल में आपको ये बता रहा होता है कि आपका पहला पोल इस एंगल पे पड़ा होगा। ठीक है, मैंने पहला एंगल 45 पे रख लिया। ठीक है, उसके बाद और जो नीचे वाला एंगल है वो मैंने -45 पे रख लिया। ठीक है, जो ऊपर वाला पोल और नीचे वाला पोल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है। ठीक है, 45 + 45 90 हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 है। अगर आप n = 4 के केस में आएंगी तो अब आपने 8 को डिवाइड करना है 180 से, आपके पास एंगल आएगा 22.5। ठीक है, तो अब जो पहला पोल आपने रखना है वो 22.5 के एंगल पे रखना है, और जो नीचे वाला पोल है वो -22.5 रेडियंस के एंगल पे रखना है। ओके, और फिर इनके बीच में आप फर्दर 45 ऐड करती जाएंगी तो आपके पास सारे पोल्स अल्टीमेटली यहाँ पे वो प्लॉट हो जाएंगे। मतलब कि जितने पोल्स आ रहे हैं उससे 180 से डिवाइड करेंगे, फिर हमें पता चलेगा किस एंगल पे रख रहे हाँ, हैं। आपको स्टार्टिंग एंगल पता चलेगा कि आपका पहला पोल किस एंगल पे आएगा, जो ऊपर वाला है, और जो पहला नीचे वाला है वो किस पे आएगा। पहले पोल से मेरी मुराद है वो पोल जो आपके पास +1 से करीब तरीन है। ऐसा वहीं से स्टार्ट करते हैं ना अपना एंगल। जी। ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा आपका पहला पोल किस एंगल पे है, फिर उसमें आप 45 ऐड करें, दूसरा पोल आ जाएगा, फिर 45 ऐड करें, तीसरा पोल, फिर 45 ऐड करें, चौथा पोल, एंड सो ऑन। आपने सर्कल पूरा अपना कर लेना है इसी तरह। जी सर, आ गई समझ। ठीक है, तो 3 चीजें। सबसे पहले नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ पोल्स यूनिट सर्कल के ऊपर होंगे, तीसरा नंबर ऑफ पोल्स जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के एंगल सब हर पोल के बीच में बराबर होगा। कोई और बंदा है जिसको ये बात समझ नहीं आई अभी तक? आ गई सर। सबको आ गई, कोई मसला नहीं इसमें। यस सर, अभी जी, ये कौन कौन मुझे कह रहा है दोबारा बताएं। हेलो हेलो जी सर। सर आपने ये बताया ना कि 45 एंगल ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट पोल आपको पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन हमेशा आप हमेशा 45 नहीं। ठीक है, 2 पोल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो। जी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। बताएं। सर अगर 45 इस तरह ऐड करेंगे तो 4 दफा ऐड करने के बाद तो दोबारा आप पहले वाले पोल पे ही आ जाएंगे, तो इस तो तरह हम आते हैं। ज्यादा पोल तो नहीं प्लॉट कर सकते। ओके, 4 दफा ऐड अगर करने के बाद
पहले वाले पोल पे आगे कर लेवे कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कितने पोल्स ही बनते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 2 के केस में आपके पास 4 पोल्स ही बनने हैं। ओके जी सर, आ गई समझ। आप पोल्स तब बढ़ेंगे जब ऑर्डर बढ़ेगा। जब n जी सर। बढ़ाएंगे तो फिर मजीद पोल्स आते हैं। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि अपने सोल्यूशन को चेक करने के लिए जरूरी है कि आप एंगल ऐड करते जाएं। अल्टीमेटली आपको उसी पोल पे वापस आना चाहिए। अगर आप एक्जैक्टली उसी पोल पे वापस आ गए हैं और नंबर ऑफ पोल्स पूरे हो गए तो इसका मतलब आपने सोल्यूशन ठीक बनाया अपना। ओके अभी हम एक ओके सर। एग्जांपल करेंगे तो चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। चलें अब मैं चाहता हूं अगली स्लाइड पे मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है। यस सर। ओके अब हम आगे आते हैं। ओके सो विच ऑफ द 2n poles बिलोंग टू द HS। अच्छा अब हमने ये क्लियर कर लिया कि अगर मेरे पास ऑर्डर n होगा तो मेरे पास पोल्स बनेंगे 2n। ठीक है अब मेरा क्वेश्चन है कि 2n पोल्स जो हैं इनमें से कौन से पोल्स जो हैं वो आपके HS को रिलेट कर रहे हैं और कौन से पोल्स HO - S को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है बेसिकली वी सॉ इन अ Laplace transform दैट इफ ऑल पोल्स आर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ S plane then it represent a stable and causal system. So only poles from a left hand side of S plane will be allocated to H of S. ये चीज क्लियर है, हमने Laplace ट्रांसफॉर्म में ये चीज पढ़ी भी थी। ओके हमने ये चीज पढ़ी थी। सर इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ओके हमने Laplace ट्रांसफॉर्म में S डोमेन में अपने पोल जीरो प्लॉट बनाए थे। ठीक है वहां पे हमने ये चीज देखी थी कि अगर हमारे पोल्स सारे के सारे Laplace S डोमेन में S प्लेन में लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो हमारा सिस्टम कॉजल भी होगा स्टेबल भी होगा। आप अपने लेक्चर्स को देख सकती हैं दोबारा जाके लाइन वहां लिखी होगी जरूर। ठीक है अगर नहीं भी लिखी हो तो फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ऑनवर्ड कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है कि इन S प्लेन if all your poles are in a left hand side then your system is stable and causal at the same time. Okay and this is something that we want our system to be all the time. We want them to be stable and we want them to be causal. Okay ओके सर। ठीक है अच्छा अब मेरा आपसे अब ये आगे एक एग्जांपल है। ठीक है determine the transfer function of a Butterworth filter low pass with order k is equal to 3 and omega c is equal to 1। ठीक है अब k is equal to 3 है तो मेरे पास पोल्स कितने बनेंगे टोटल 6। ठीक है अच्छा पहले पोल का एंगल किस तरह निकलेगा 60 आएगा सर पहले बोल 180 पहले का 60 आएगा। ठीक है बिल्कुल वही मैंने यहाँ पे प्लॉट भी कर दिया आपके सामने नीचे। ठीक है आपने पहले प्लॉट का एंगल 60 निकाल लिया ऊपर भी और नीचे भी आपने वही पोल -60 पे कर दिया प्लॉट। एग्री लेकिन सर जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ अब तो एंगल 30 आता है तो आपने 60 क्यों कहा है? अच्छा 180 आपने तब डिवाइड करना है जब आपने अगर नंबर ऑफ पोल्स 2n लिए हैं तो फिर 360 से डिवाइड करें। अगर आपने नंबर ऑफ पोल्स सिर्फ n लिए हैं तो फिर उसे 180 से डिवाइड करना आपने। ठीक है ओके सर। बेसिकली हमारे पास जो पोल्स आएंगे ना बेटा उनमें से आधे पोल्स हमारे काम के हैं और बाकी आधे पोल्स हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है और सिर्फ वो पोल्स बता दें आपने ये एंगल 60 किस तरह निकाला है नहीं समझ। ठीक है आपके पास जो ऑर्डर है बेसिकली ठीक है आप ऑर्डर को 180 से करते हैं हमेशा डिवाइड। ठीक है आपने ऑर्डर को 180 से डिवाइड किया आपके पास 3 है 180 से डिवाइड किया क्या आंसर आया 60। ठीक है अब आपका पहला पोल जो है +60 के एंगल पे पड़ा होगा और जो बिल्कुल नीचे वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पोल है वो -60 के एंगल पे पड़ा होगा। ठीक है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है डिफरेंस 120 का। ठीक है इसका मतलब है कि पहला पोल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो उससे अगला पोल है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है उनके बीच में एंगल 120 का होना चाहिए जरूर। जी सर। ठीक है अच्छा अब हमने यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर k = 3 ओमेगा c = 1। ठीक है हमने एंगल निकाल लिया और हमने जो पोल्स हैं सारे के सारे वो यहाँ पे प्लॉट कर दिए। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज अपने पास ध्यान में रखिएगा कि आपके पास एक पोल +1 पे भी है और एक पोल -1 पे भी है। क्लियर हाँ जी ठीक है अच्छा अब इनमें से कौन से पोल जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और कितने पोल्स राइट हैंड साइड पे हैं 2 लेफ्ट एंड 2 राइट 3 लेफ्ट पे हैं 3 राइट पे हैं। आपके पास एक +1 और -1 पे भी पोल मौजूद है। अच्छा
ठीक है। अच्छा, अब इनमें से अभी हमने कुछ देर पहले स्टेटमेंट पढ़ी है कि आपके सिर्फ वही पोल्स ऑफ एचएफएस को रिलेट कर रहे होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से पोल्स हैं? 3 पोल्स हैं। हाँ, वो कहाँ पड़े हुए हैं? सर एक सर 0 एक पे है, 60 पे है, 1 पे तो कोई नहीं है, 1 पे है, 1 पे है। -1 पे एक -1 लेफ्ट पे पे तो एक दो ही है सर। -1 पे। बेटा 3 एक नहीं वो -1 तीन एक -1 पे भी है। यस सर, एक -1 पे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीनों पोल्स है ना, एक तो -1 वाला है, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। ठीक है। अब ये ऊपर वाले और नीचे वाले की हम निकालेंगे लोकेशन और हमारा ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। ये अपने डायग्राम ज़हन में रखनी है। यहाँ है। अब बिल्कुल पोल्स इन लेफ्ट हैंड प्लेन्स आर, जो पहला पोल है वो -1 पे है, जो दूसरा पोल है वो -1/2 प्लस j√3/2 है, और जो तीसरा पोल है वो -1/2 माइनस j√3/2 है। इसी जगह पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा शो कर देता हूँ आपको। हेलो सर जो आपने पहले स्लाइड खोली थी वो वाली खोलिएगा जिसपे π/2 वो एंगल बता रहे थे आप, जो ये इससे लें। पहले अभी ये जो लें। अच्छा, इसमें जो एक पॉइंट जो मिस हो गया ना अभी तक, वो अपने ज़हन में रखिएगा कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑड है ना, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, तो फिर आप अपना पोल एग्जैक्टली 0 से शुरू करेंगे। और अगर आपके पास ऑर्डर इवन है तो फिर आप अपनी वो जो एंगल वाली हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपने अपने ऑर्डर को 180 से डिवाइड करना है, तो आपके पास पहला एंगल आएगा, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि आप देखिएगा कि n = 1 के केस में आपके पास एक पोल +1 और -1 पे पड़ा हुआ है। n = 3 में, जो कि अभी हमने सिनेरियो पढ़ा ये वाला, इसमें आपके पास एक पोल +1 और -1 पे पड़ा हुआ है। और अगर आप n = 5 लेंगे तो फिर दोबारा आपके पास एक पोल +1 और -1 पे होगा। ठीक है, तो आप ये भी अपने पास पेपर पे लिख लें कि रूल ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑड है, ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो फिर आपका एक पोल +1 और -1 पे भी होगा, और उसके बाद से आप शुरू करेंगे एंगल। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर इवन है तो फिर स्ट्रेट अवे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आप 180 को अपने ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, आपको वहां से पहला एंगल मिलेगा, जैसे n = 2 के केस में। ठीक है, आपके पास क्या था, ऑर्डर था 2, ठीक है, आपके पास टोटल पोल हो गए 4, ठीक है, और उन 4 को इस सर्कल में अरेंज करने के लिए मैंने 45 45 प्लस 90 और -90 -45 वहां पे प्लॉट किया। सबको शो हो रहा है ये? सर एक बार दोबारा बताइएगा, आपने कहा था कि जब इवन होंगे तो हमने जो 180 है उसको ऑर्डर से डिवाइड करना है या जी। पोल से, नंबर ऑफ पोल से डिवाइड करना है? बेसिकली ऑर्डर और पोल्स के बीच में रिलेशन क्या है? सर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऑर्डर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोल्स निकल आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, अब n = 2 के केस में हमारे पास पोल्स कितने बनेंगे? 4 को 180 से डिवाइड करें, क्या जवाब आता है आपके पास? 45। तो अब अगर n = 2 के केस में देखें, जो भी स्लाइड शुरू मैंने खोली हुई है, कि आपके पास जो पहला पोल है वो +45 पे पड़ा हुआ है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यस ठीक है सर। और जो दूसरा पोल है एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम 0 नीचे की तरफ -45 पे पड़ा हुआ है। ओके, यस सर। ठीक है, इन दोनों पोल्स के बीच में एंगल कितना है? सर इन दोनों पोल्स के बीच 90, यस सर 90। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला पहला पोल है उससे जब लेफ्ट पे जाएंगे अगला पोल, तो आपने इसी पोल में 90 का एंगल ऐड करके अगला पोल बना देना। बन गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो सिनेरियो ये बेसिकली ये इंश्योर करेगा कि जो आपके पोल्स हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को जो अगली वाला सिनेरियो उस पे हम कर लेते हैं टेस्ट के वाकई ऐसा है या नहीं। जो अगली वाला जो मैंने सर्कल लगाया ये n = 4 के लिए। ओके, यस सर। ठीक है, n = 4 के केस में टोटल पोल्स कितने बनेंगे? 8 को 180 पे डिवाइड करें। और एक और चीज देखें, क्या n = 4 ऑड है या इवन है? इवन है सर। इवन है, इसका मतलब है कि 0 +1 और -1 पे कोई पोल नहीं है। ओके, यस सर। ठीक है। सो सर हमारा पहला 22.5 पे बनेगा। एग्जैक्टली मैंने वही बनाया हुआ है। ठीक है, पहला 22.5 पे आ गया ऊपर और दूसरा -22.5 पे नीचे आ गया। ओके, यस सर। अब 22.5 और 22.5 ऐड करके कितने हो गए? 45
45। तो अब जो ऊपर तो वाले सर से ऊपर वाला पोल है, वो ऊपर वाले पोल में 45 का एंगल ऐड करके मैंने दोबारा ऊपर बना दिया एक। मतलब सर 22.5 में 45 ऐड करके उससे अगले वाला एंगल बनेगा। हाँ, क्योंकि अब आपके पास कोई भी पोल ये जीरो वाली लाइन पे नहीं है, ठीक है। और यस सर यस हर पोल्स के बीच में जो आपस में वो एंगल है ना, वो बराबर होना चाहिए हमेशा, वो इक्वी एंगल होने चाहिए एक दूसरे के साथ, और वाई एक्सिस यस के अलोंग एक दूसरे का मिरर इमेज भी होने चाहिए। यस यस। तो सर ऑड के केस में सर 180 से उसको भी 180 से डिवाइड करके लिखते हैं। उसको भी 180 से करना है, लेकिन मसला है कि ऑड के केस में आपके पास एक एक जो पोल है ना, वो +1 और -1 पे भी होता है हमेशा, जैसे n = 1 के केस में है और ये n = 3 के केस में है, ठीक है। यस अब सर। इस केस में हमें रूल बनाना है कि इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब k = 3 है, आपने एक 1 पे बना लिया अपने पास, ठीक है। अब इस केस में मेरा ख्याल है कि आप जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, उसको 180 पे डिवाइड करें, क्या आता आंसर आपके पास? 60, ठीक है। पिछले केस में हमने नंबर ऑफ पोल्स को 180 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास आया था। इस केस में नंबर ऑफ जो ऑर्डर है उसको 180 पे डिवाइड करें तो आपके पास पहला आ जाता है एंगल, ठीक है। बेसिकली अगर आपको ये एंगल और ये आपने 180 पे डिवाइड नहीं भी करना तो भी ये कोई बहुत मुश्किल सिनेरियो नहीं है, बहुत मुश्किल केस नहीं है। आपके पास 6 पोल्स हैं, आपने उन्हें यूनिट सर्कल पे इस तरह अरेंज करना है कि वो वाई एक्सिस पे एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाए, ठीक है। आपके पास यही वो आउटपुट सिनेरियो बनेगा। इस आउटपुट सिनेरियो के अलावा और कोई सिनेरियो बन नहीं सकता। ये बन सकता है कोई? सर एक बात कहनी थी सर, अगर क्या कहते हैं मतलब ऑर्डर हम 4 तक लेके जा रहे हैं, जैसे 5 अगर 5 ले जाते हैं, ठीक है। अब 5 को हम डिवाइड करेंगे 180 से तो तकरीबन हमें काम करते हैं, जस्ट अ सेकंड। हमारे पास जो पेपर है ना, हम उस जो पेपर पेन है अभी हमारे पास, हम n = 5 पे अभी उसे चेक कर लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर हो गया हमारे पास n = 5, पोल्स हो गए हमारे पास 10। क्लियर सबको? जी सर, पोल 10 होंगे और 30 ठीक है। अच्छा, अब 6 मैं का एक है लगा देता हूँ सर्कल। अब इस केस में ऑर्डर मेरे पास ऑड है या इवन है? सर ऑर्डर ऑड ऑड है। इसका मतलब है कि एक एक पोल +1 और -1 पे भी होगा। यस यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने ये क्या किया था कि हमने कहा था कि हम 180 को अपने ऑर्डर से डिवाइड कर लें। 180 को 5 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 36 इतना 36 36 आता है सर। इसे 360 से डिवाइड करें। किसका 360 से डिवाइड करें? 72 36, ठीक है। 72 अभी आपने 180 को 5 से डिवाइड किया, आपने आंसर निकाला 36, ठीक है। मैं दूसरा जो पोल है वो 36 के एंगल पे बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरा पोल है वो इसमें 36 मजीद ऐड करें, क्या बनेगा? 36 36 72, ठीक है। 72 यस। और नीचे की तरफ भी आए, आपके पास एक -36 पे, एक -72 पे, राइट, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब मैंने जो राइट साइड पे मेरे 5 पोल्स हैं, मैंने वो बना लिए हैं। मेरे पास पहला पोल है 0 पे, मेरे पास दूसरा पोल है 36 पे, और मेरे पास तीसरा पोल है +72 पे। मेरे पास नीचे की तरफ जो 2 पोल्स हैं, पहला है -36 पे, दूसरा है -72 पे। क्लियर? यस सर। अच्छा, और 5 पोल्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए। मुझे बताएं कि अगर इन्हीं का मिरर इमेज हम इसकी लेफ्ट साइड पे ले लें, जो भी हमने बनाए हैं, तो बिल्कुल मिरर इमेज बन जाएगा सेम एंगल्स पे? बन जाएगा। इसका मतलब कि जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है कि आपके पास टोटल पोल्स 10 जो हैं वो इस यूनिट सर्कल पे अरेंज भी हो गए हैं, ठीक है। वो ए वाई एक्सिस के अलोंग एक दूसरे का मिरर इमेज भी हैं, और इन सब के बीच में जो एंगल है वो भी बराबर है 36 का। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब अभी आप कहते कि 180 मतलब हमने लेना है, तो अब आप 360 को भी डिवाइड करें। हमने 180 ही लिया है, हमने 180 को ही 5 पे डिवाइड किया। आपने 36 एंगल जो निकाला है वो 180 को 5 पे डिवाइड करके निकाला ना? यस सर। जी सर। ठीक है। तो हम हमेशा 180 को ही नंबर ऑफ उस पे n = 5 पे डिवाइड करते हैं। बट जब हम ऑड ले लेते हैं तो हमारा जो पहला पोल है वो 0 है, वहां से एंगल स्टार्ट करते हैं। और जब हम इवन ले लेते हैं तो हमारे पास +1 और -1 पे कोई पोल नहीं होता, तो हमारे पास जो पहला पोल होता है बेसिकली उसी का एक मिरर इमेज नीचे भी आ जाता है एक्सिस के अलोंग। ओके। लेकिन सर अगर ये तो इस केस में है कि जब हमारे पास n पोल्स हैं तब हमने 180 से डिवाइड किया है। अगर 2n पोल्स हो जाते हैं या 3n पोल्स हो जाते हैं तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 को इसके साथ, 2n में 2 के साथ करेंगे, 3n में 3 के साथ करेंगे।
नहीं मैडम, फिर उसे डिवाइड फिर करेगा। बेसिकली जो स्मॉल n है वो आपका ऑर्डर है। ओके, हम अपने ऑर्डर को 180 से डिवाइड करते हैं। पोल्स तो हमेशा हमारे पास ऑर्डर का डबल ही होता है। आपने n इज इक्वल टू 5 का जो सिनेरियो ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम n इज इक्वल टू 6 पे आ जाते हैं। n इज इक्वल टू 6 पे पोल्स कितने होंगे मेरे पास? 12 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर कोई गलती होगी तो अभी दूर हो जाएगी वो, ठीक है। अपने पास पीस ऑफ पेपर पे आप एक यूनिट सर्कल बना लें दोबारा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो ऑर्डर है वो इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है। इसका अंदर है कि मैं +1 और -1 पर कोई पोल नहीं होगा। एग्री? नहीं होगा सर। नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस केस में हम 180 को डिवाइड करते हैं 6 से। 6 से करेंगे या 12 से करेंगे? 12 से पहले को गलती होगी तो फिर हम आएगा, बना लेंगे दोबारा से रूल। 15 आएगा अगर 12 से करेंगे तो। 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 15 है। 15, ओके। चलें फिर आप ज़हन में रख लें कि अगर आपके पास ऑर्डर जो है वो ऑड है तो 180 को मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दें 180 को, और अगर आपके पास जो ऑर्डर है वो इवन है तो फिर पोल्स पे डिवाइड कर दें 180 को, ठीक है। 180 को 12 से डिवाइड करें, आंसर क्या आता है आपके पास? 15, ठीक है। एक +15 में बन गया, एक -15 में बन गया, ठीक है। अच्छा, +15 और -15 के बीच में एंगल कितना है, दोनों को ऐड करें। 30 को 15 में ऐड करें, क्या आंसर आता है? 45। ऊपर की तरफ जो दूसरा पोल बनेगा वो 45 पे बनेगा। बन गया? यस सर। ठीक है। फिर ऊपर एक और तीसरा पोल भी आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो आएगा 45 फिर प्लस ऐड करें 60 पे। 60 हो गए हैं, 45 और 15। जस्ट अ सेकंड, 60। नहीं सर, जैसे भी आपने ये एग्जांपल जो करवाई है इसमें आपने कहा था 2n पोल्स हैं, तो एंगल हमने निकाला था कि ये 60 है, तो हमने ऐसे निकाला था कि 2 को मल्टीप्लाई किया 180 से, फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से। देखें, इशू सिर्फ ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पोल्स हैं उन्हें हमने यूनिट सर्कल के अलोंग इस तरह अरेंज करना है कि वो वाई एक्सिस पे एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाए। ओके, अच्छा, अब इसके लिए बेसिकली आप मुझसे चाह रहे हैं कि हम कोई मैथमेटिकल रूल बना लें, ठीक है। अगर आप कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं भी करते तो भी आपके पास एक यूनिट सर्कल है और उसपे आपने 6 पोल्स बनाने हैं और वो इस तरह अरेंज हो कि वाई एक्सिस पे एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाए, तो और कोई सिनेरियो बनता ही नहीं। आपको ये एंगल्स खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रही हैं आप? यस सर, लेकिन अगर हमारे पास काफी ज्यादा पोल्स हो जाएंगे तो फिर तो मसला होगा ना। मैडम, यूजुअली n = 5 n = 6 वाले सिनेरियो से ऊपर जाएगा नहीं आपके पास एग्जाम में सॉल्यूशन। कौन सॉल्व करेगा इसको बैठ के? तो आपने बेसिकली n = 1 2 3 4 5 6 तक ही जाके इसका सॉल्यूशन को प्लॉट करना है। और हर केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ पोल्स हैं उन्हें यूनिट सर्कल पे इस तरह अरेंज किया जाए कि उनके बीच में एंगल भी बराबर है और क्या कहते हैं वो वाई एक्सिस पे एक दूसरे का मिरर इमेज भी हो, तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली ही आपके पास वो इन जगहों पे ही आके रखे जाएंगे जहां पे हमने रखा हुआ है इनको। अब इनके बीच का आपने रूल निकालना है ऑड और इवन का, तो वो निकालने अपनी उसके समझ बूझ के लिए। ये जरूरी नहीं है, किसी बुक में ये रूल्स गिवन नहीं होते जो हम ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, अगर हम जो पोल्स हमारे टोटल आ रहे हैं उसको 360 से डिवाइड कर दें तो हमें अपने आप एग्जैक्ट एंगल पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा, मतलब लेकिन वो इवन और ऑड के केस में अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ, आपको अलग एंगल मिल जाए बेसिकली फिर ये काम कर सकते हैं। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है, जैसे 12 हैं, ठीक है, 360 को ऊपर रखें और 12 को नीचे रखें तो आपके पास एंगल आ जाता है 30 का, ठीक है। अच्छा, अब ये 30 का एंगल है, लेकिन मसला ये स्टार्ट कहाँ से होगा? अगर आपके पास ऑर्डर ऑड है तो आपने पहला पोल 0 पे +1 पे बनाना है और फिर उसमें 30 का एंगल डाल के ऐड करते जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो आपने पहला पोल है वो 0 पे नहीं बनाना, मतलब वो +1 पे नहीं बनाना, मतलब पहले एंगल नहीं आना है, तो फिर पहले को 30 दे के आगे ऐड करते जाएं। माने ये रूल्स आपकी अपनी स्वाबदीद आपने बनाने हैं, ठीक है, फेयर इनफ। आप नहीं भी बनाना चाहते तो कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करते हुए आपने अगर ये नंबर ऑफ पोल्स को यूनिट सर्कल पे अरेंज करना है तो इसी तरह अरेंज होंगे। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है ये। सर ये अभी आपने उसने साथ ने बोला है कि 180 को 12 से डिवाइड करना है, तो ये 180 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो एंगल +15 से स्टार्ट होता है हमारा, मतलब एक मुझे पहले सिनेरियो बता दें, ऑर्डर क्या आपका? ऑर्डर 6 है।
n इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, इसका मतलब है कि आपके पास +1 और -1 पे कोई पोल नहीं आना। एग्री? नहीं आएगा। यस सर। नहीं आएगा। ओके, तो मैं एक पहला यूनिट पोल मैं एक सर्कल लगा के, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, और टोटल पोल्स कितने होंगे मेरे पास? 12, 12 होंगे। राइट? ठीक है, यस 6 राइट हैंड साइड पे, 6 लेफ्ट हैंड साइड में। एग्री? यस सर। ठीक है, अब हमने पहले पोल का एंगल निकालना है। ठीक है, आप किस चीज को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 360 को ऊपर रखें, नीचे क्या रख रहे हैं आप? सर मैंने पहले जो मैंने 60 वाला एंगल बताया था वो इसी तरह से बताया था कि मैंने ऑर्डर से डिवाइड किया था 180 को। अगर आप 360 ले लेते हैं तो वो डिवाइडेड बाय 2n हो जाएगा, तो आपका आंसर फिर सेम आ जाएगा। हाँ, लेकिन मसला है कि 180 को नंबर ऑफ पोल्स से डिवाइड करना है, ना कि सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना है, ना कि नंबर ऑफ पोल्स से डिवाइड करना है। ऐसे कर लेते हैं, 180 ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखना है अब इसके? 6 नीचे 6 रखा, मेरे पास आंसर आया 30 आ गया। यस ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि बाकी 30 ठीक भी है कि नहीं। मैंने पहला पोल लगाया +30 पे, दूसरा लगाया -30 पे, लग गया? यस सर। ठीक है, इनके बीच में ऑर्डर वो एंगल कितना बना दोनों पोल्स के बीच में? 60 का। 60 का। अच्छा, अब ये प्रोबेबली मसला हल नहीं होगा, प्रोबेबली मसला बनेगा। ठीक है, आपने पहला पोल 30 पे लगाया, अब इसमें 60 ऐड करें तो अगला पोल कहाँ लगेगा जाके? अगला पोल लगेगा सर 90 पे। 90 पे। ठीक है, लेकिन मसला ये है, और नीचे वाला पोल लगेगा 90 पे। मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास टोटल पोल थे 12 और आपके पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ 4 ही पोल एडजस्ट हुए हैं। ओके, तो इसका कहना है कि जो भी ओरिजिनल हमने वो सोल्यूशन लिया वो ठीक नहीं है। आपने कोई 180 को या तो 12 से डिवाइड करना है या ऊपर कोई और चीज थी। तो ये आपने देखा कि आपके पास जो भी सोल्यूशन आया, आपने जब उसे यूनिट सर्कल में प्लॉट करने की कोशिश की तो आपको तभी से आप रियलाइज कर लेते हैं कि यहाँ कोई मिस्टेक है। जी ठीक है, अब अगला सिनेरियो क्या है, अब क्या करें, इस मसले को कैसे हल करें? आपके पास ऑर्डर है 6 और पोल्स हैं 12, अब ऊपर क्या रखूं नीचे क्या रखूं, मुझे फिर से बताएं। तो सर इसका मतलब है कि फिर अब जो 180 को 12 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, 180 को ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं 12। आंसर क्या आया? आंसर आएगा सर 15। ओके, अब हम फिर से मैं एक लगा लेता हूँ यूनिट सर्कल। ओके, और चूंकि मेरे पास ऑर्डर इवन है तो इसका मतलब +1 और -1 पे कोई पोल नहीं होगा। एग्री? जी सर। ओके, अब पहला पोल आया +15 पे, दूसरा पोल आया -15 पे, राइट? यस सर। ठीक है, +15 में और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 +15 में 30 ऐड करें, क्या बनेगा? दूसरा पोल कहाँ आएगा ऊपर वाला? 45। ठीक है, और 45 में फिर दोबारा 30 ऐड करें तो अगला एंगल कहाँ आएगा? 75 पे। ठीक है, और यही काम नीचे भी होगा, -45 -75 आ गया। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताएं आपके पास राइट हैंड साइड पर टोटल कितने पोल्स आ गए? 6 हो गए सर। 6 हो गए। ठीक है, अब ऊपर, अब इसको वेरीफाई मजीद कर सकते हैं। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला पोल है वो भी आपके पास 75 पे पड़ा हुआ है। एग्री? जी। 75 में 30 ऐड करें तो क्या बनेगा? 105। अगला एंगल 105 पे होगा। ठीक है, अब अगले पोल जब बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जाते रहेंगे तो आप देखेंगे वो बिली इन्हीं पोल्स का मिरर इमेज ही आ रहे हैं। जी सर। तो इसका मतलब आपका सिनेरियो ठीक हो गया। ये वाला आपके पास सारे जो पोल्स हैं वो इक्वी एंगल भी हैं एक दूसरे के साथ, और वो वाई एक्सिस के अलोंग एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। ठीक है, तो सर इसका मतलब है कि जब हमारे पास कि हमने 180 को नंबर ऑफ पोल से डिवाइड किया। ओके, यस सर। और ये कौन सा सिनेरियो था? ऑर्डर जब इवन होगा। ठीक है, अब हम इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक ऐसा ऑर्डर ले लेते हैं जिसमें ऑर्डर ऑड हो। ओके, यस सर। ठीक है, अब हम n ले लेता हूं मैं 5। ठीक है, यस सर। n इक्वल टू 5 और पोल्स मेरे पास कितने होंगे? n इक्वल टू पोल से 10 हो जाएंगे। पोल्स होंगे 10। मैं फिर से एक ले लेता हूँ यूनिट सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में जो एक कांस्टेंट है वो ये है, हमने देखा हुआ है कि जब भी ऑर्डर ऑड होगा तो मेरे पास एक पोल +1 और -1 पे मौजूद होगा। जी बिल्कुल सर। चलें, अब फिर से दोबारा हम 180 को नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 18। ठीक है, हाँ, अब मेरा ख्याल है कि 180 को 18 से डिवाइड करना मसला प्रॉब्लम हल नहीं होगा। अब हम नंबर ऑफ पोल से डिवाइड ना करें, अब हम इसे ऑर्डर से डिवाइड करें। ओके, हम रूल बना लेते हैं अपने पास। ठीक है, 180 को ऑर्डर से डिवाइड करें, 5 से क्या आंसर आता है? सर आएगा 36 आया था। 36। ओके, अच्छा, हमारे पास एक पोल ऑलरेडी +1 पे पड़ा हुआ है, अगला पोल मैंने बनाना है 36 पे, लग गया? यस सर। ठीक है, और नीचे वाला जो बनेगा वो कितने पे बनेगा? -36 पे। ठीक है, और कोई से भी दो पोल्स के बीच में एंगल कितना है इस वक्त? एंगल हो गया सर 36 की है।
36 ये क्योंकि आपके पास एक पोल 72 ऑलरेडी प्लस 1 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 36 जी में 36 ऐड करें तो 72 अगला होगा। आपके पास एक पोल ऑलरेडी प्लस 1 पे पड़ा हुआ है इस वक्त, ओके ओके यस सर, ठीक है। अच्छा अब अच्छा 36 हाँ के बाद 36 के बाद अगला पोल बनेगा 72 पे और नीचे वाला यस बनेगा सर, -72 पे, बन गया, -7 जी ठीक है। सर, अच्छा अब एटलीस्ट राइट साइड पे मुझे लग रहा है कि मेरे पास 5 पोल्स 5 हो बराबर गए हैं हो। सर, अब जी एक सर हो इसको गए हैं। टेस्ट करने के लिए एक आखिरी काम करें कि ऊपर वाला जो आपने पोल 72 पे लगाया है उसमें 36 ऐड करें, अब उसके वो कहाँ लगेगा जाके ऊपर लेफ्ट साइड पे 108 108 सर 108 पे, 108 पे, तो इसका अंदर ये मेरे इमेज बन गया मेरे पास। ठीक है सर, वो -108 और वो चेंज हो जाएगा। वाई वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे कि नहीं ये सर बन रहा है, बन रहा है, इसका मतलब है बन कि ये रहा है। चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमने रूल बना लिया है कि अगर आपके पास ऑर्डर इवन है तो 180 को नंबर ऑफ पोल से डिवाइड करें, अगर आपके पास ऑर्डर ऑड है तो 180 को ऑर्डर से डिवाइड करें। क्लियर, ठीक हो गया सर, ठीक है। और अगर आपके पास ऑर्डर ऑड है तो आपने एक एक पोल +1 और -1 पे पहले से बना के रखना है। जी क्लियर, कोई इशू तो नहीं यहाँ पे किसी को? ओके, ठीक हो गया, कोई और बच्चा थैंक यू सर। समझ आई? जी जी सर जी जी सर इसको इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही क्या है? हम लोग चुप करके इसका मिरर इमेज फॉर एग्जांपल 6 हमारे पास ऑर्डर है, 6 एक साइड पे बना ले, 6 दूसरी साइड पे बना ले और 180 डिवाइडेड बाय कर लें जितना ऑर्डर है और सारों के बीच में बस एंगल लिखने, और तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इतना हम लोग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इसको। मैडम मैंने तो पहले आपको ये कहा था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप रूल्स अपने आप को सॉर्ट ऑफ बेसिकली हम कॉम चलती है रूल्स के पीछे, कॉमन सेंस है। नंबर ऑफ पोल्स दे दिए हैं, 3 कंडीशंस दे दी हैं, उन्हें अरेंज करने यूनिट सर्कल के ऊपर अरेंज करने का और कोई सिनेरियो हो ही नहीं सकता। आप ठीक कह रही हैं, आपको अगर रूल्स नहीं भी आ तो आपको एग्जैक्टली उस सोल्यूशन तक पहुंच सकती हैं जिन पे ये बच्चे रूल लगा के पहुंचना चाह रहे हैं। मैंने पहले कहा था नहीं ये सेंटेंस, यस सर। ठीक है। हाँ तो बस आपके पास पोल्स हैं, आपने उन्हें यूनिट सर्कल में अरेंज करना है। 3 कंडीशंस हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज होने चाहिए, उनका एक दूसरे के बीच में एंगल बराबर होना चाहिए, बात खत्म। और यूजुअली हम n = 5 6 तक ही जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और आप कोई भी बुक लें, n = 2 के लिए जो सोल्यूशन है वो कांस्टेंट है पूरी दुनिया में, n = 3 के लिए कांस्टेंट है, 4 के लिए कांस्टेंट है, 5 के लिए कांस्टेंट है, वो सेम है, कोई और नहीं बन सकता। इसका ना ये चीज क्लियर होगी। जिन लोगों ने रूल्स के साथ याद करना है वो रूल्स के साथ याद करना है, जिन्होंने रूल्स के साथ नहीं याद करना वो रूल्स के बगैर याद करना है। मुझे सिर्फ सोल्यूशन चाहिए एग्जाम में। ओके अब वापस आते हैं अपनी एग्जांपल पे। हमारे पास ऑर्डर था 3 और ओमेगा c है 1, हमारे पास चौके ऑड है तो एक एक पोल +1 और -1 पे पड़ा होगा। बाकी पोल्स के लिए हमने एंगल बना लिया, हमने ये पोल्स बना लिए। क्लियर हो गया सबको? यस यस सर, यस ओके। सर। अब आगे चलते हैं। जब हमने एक दफा यूनिट सर्कल पे पोल्स को प्लॉट कर लिया उसके बाद क्या करना है? अब सिर्फ वो पोल्स लेने हैं जो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है। वो पोल्स नहीं लेने हैं जो वाई एक्सिस की राइट साइड पे हैं। ओके ठीक है। इसका मतलब है कि जो आधे पोल्स हैं वो हमारे काम के हैं, बाकी आधे पोल्स हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो वो पोल्स जो वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे हैं उनकी मैंने लोकेशन निकाल दी है। इस केस में मेरे पास पहला पोल जो है एक पोल -1 पे है, एक पोल -1/2 + j√3/2 पे है, और जो लास्ट पोल है वो -1/2 - j√3/2 पे है, ठीक है। जो मेरे पास तीनों पोल्स आ गए तो अब मैंने सिर्फ आगे ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। और हमें पता है कि अगर हम ट्रांसफर फंक्शन से पोल्स बना सकते हैं तो हम पोल से ट्रांसफर फंक्शन भी बना सकते हैं। मैंने वही HOF लिया और 1 ओवर करके जो भी ये पोल्स थे उनको नीचे मैंने एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, s+1 s+1/2 + j√3/2 * s+1/2 - j√3/2। आगे ब्रैकेट बंद भी करनी है जो मैंने नहीं की, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्यूज नीचे मी वाले सर, जी जी ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ है S फॉर पोल 1 = -1 और जो पोल 2 और पोल 3 के लिए ये जो पीछे आपने शुरू में फॉर्मूला दिखाया था cos of pi divided by 2n into 2k minus 1, उस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट की है k की और n की। जी ये वाला फॉर्मूला। नहीं 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 मैडम नहीं, बेसिकली ये जो आपके सामने फिगर शो हो रही है यस सर। ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे पोल कहाँ पड़े हुए हैं? -1 पे है और एक ऊपर है और एक नीचे है, ऐसा ही है। और एक उसके नीचे है। यस हाँ, सर। इन तीनों पोल्स का मैंने लोकेशन निकाल ली है। क्या क्या? लोकेशन कैसे निकाली है? हाँ ये आपने मुझसे $multi-million क्वेश्चन किया है बेटा। एक कैसे निकालेंगे लोकेशन? आपको पता है जो आपके पास ऊपर वाला पोल है उसका कोई y कंपोनेंट है और कोई x कंपोनेंट है, राइट?
यस सर। ठीक है, अब y और x कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टेंजेंट लेंगे आई थिंक। नहीं मैडम, इतनी मुश्किल ना करें वहाँ- जिंदगी, cos साइन तक रखें बस। ठीक है, आपको जो ऊपर वाला ठीक जो है। पोल है उसका एंगल मालूम है? ओरिजिन से कितना एंगल है उसका? 90 + 30। 120। कैलकुलेटर रखा करें, यस इतनी सर। मुश्किल कैलकुलेशन करनी होती है। यस सर 120 90 है। में 30 ऐड नहीं होता हमसे। ठीक है, 120 का जरा कॉस लें, क्या बनता है? -1/2। -1/2। गुड जॉब। अच्छा, अब इसी का साइन भी ले लें एक दफा। √3/2। अंडर रूट माइनस है कि प्लस है? प्लस है, प्लस। ठीक लेकिन है, वो फॉर्मूले का प्लस। ठीक है सर। एग्री। ठीक है, इसके साथ जे लगा दें। बिल्कुल यही काम मैंने यहाँ पे किया। -1/2 + j√3/2, और जो नीचे वाला है -1/2 - j√3/2। मुश्किल चीज तो नहीं है, पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ओके जी सर, आ गई समझ। ओके, चलें। अब जब डिनोमिनेटर में ये सारे बन गए, डिनोमिनेटर में एक दूसरे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें, फाइनल एक्सप्रेशन बन गई मेरे पास h of s = 1/s³ + 2s² + 2s + 1। ओके, हेलो। यस सर। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन है। यही मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए था अपने लो पास फिल्टर का, जिसका ऑर्डर 3 हो और जिसमें ओमेगा c 1 हो। ओके, किसी को कोई इशू हो अभी तक इस एग्जांपल के साथ जो हमने सॉल्व किया है? सर इस ऑर्डर सर जी जी, इस फिल्टर का ऑर्डर कितना था? 3, मेरा ख्याल है 3 था। तीन हाँ था। 3 था जी ठीक हो और गया। ओमेगा c 1 था। ठीक है, अच्छा वन चलें, था। अब ये एग्जांपल क्लियर हो गई। अब अगली एग्जांपल है, वो कहता है इसी पिछली एग्जांपल को रिपीट करें, k = 3, लेकिन अब कोई ओमेगा c है। अब ओमेगा c उसने 1 नहीं दिया हुआ, उसने एज ओमेगा c दिया हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे हम? सर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है। हाँ होती है, लेकिन उसने वो कांस्टेंट वैल्यू हमें ओमेगा सी की फॉर्म में दे दी। उसने कहा कि जो कांस्टेंट चीज है वो ओमेगा सी w ओमेगा सी, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही है। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, किधर गया? हाँ, ये मैंने स्लाइड 4 खोली हुई है आपके सामने। ओके, यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसको मैंने m का नाम दिया हुआ है। ओके, जी सर। ठीक है, Yes, अब अपने sir. पास पीस ऑफ पेपर जो आपके पास हैं मेरे सामने, मेरे साथ मिलके जरा इसको लिखें। इज इक्वल टू 1/1 प्लस s/j⍵c डिवाइडेड बाय रेज टू पावर 2k। यही जो एक्सप्रेशन स्लाइड में आई है, यही मैंने आपसे लिखवाई है। लिख ली है आपने? यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक काम करें, इस केस में लिखें s1 = s/ωc। हमने एक सॉर्ट ऑफ रिलेशन बनाया खुद का। s1 = s/ωc। ठीक हो गया सर। S1 = s/ωc। हाँ, s1 = s/ωc। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में s/ωc की जगह s1 पुट कर दें तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी? सर वो लास्ट एग्जांपल जैसी हो जाएगी सारी। एग्जैक्टली लास्ट एग्जांपल जैसी हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ आ रही मैं उन्हें एक बार क्लियर कर दूं। ठीक है, हमने बेसिकली रिलेशन ये लगाया है s1 = s/ωc और s/ωc की जगह मैंने s1 पुट कर दिया है ये m वाली एक्सप्रेशन में। तो m वाली एक्सप्रेशन मेरे पास बन गई है 1/1 प्लस s1/ωc ⁵ सबके पास यही बना है। लेकिन सर यहाँ पर तो ओमेगा सी की पावर 2k भी तो है। तो होने दे, मैं ओमेगा सी को तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन s/ओमेगा c की जगह पर हमने s1 पुट करना है ना, तो ओमेगा c की पावर 2k है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी भी अंदर मौजूद है वो। आपने अभी कहा है कि s/ओमेगा c की जगह पर हमने s1 पुट कर देना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे आपने पास जो एक्सप्रेशन हाँ 1 प्लस s1/j⍵k। ओके, समझ आ गई है।
आ गई, ठीक है, ओके। ये एक्सप्रेशन बन गई, इसको इसी तरह जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरह करते जाएं। सर फाइनली जी सर अब तो एक्सप्रेशन हमने रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, S1 रिप्लेस करना है वहां पे जो आपने एक्सप्रेशन M बताया। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट तक पहुंचना चाह रहा था कि ये जो आपके पास अभी जो मैंने स्लाइड खोली हुई है, यहाँ पे जो आपके पास S है, इसको आपने मतलब ये S1 है, इसको S ओवर ओमेगा C से रिप्लेस कर देना आपने। तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा H ऑफ S इज इक्वल टू 1 ओवर S ओवर ओमेगा C का क्यूब प्लस 2 इंटू S ओवर ओमेगा C का स्क्वायर प्लस 2 इंटू S ओवर ओमेगा C प्लस 1। यही बन रहा है सबके पास? जी सर। ठीक है, बस ये सोल्यूशन है, फाइनल आंसर, खत्म बात। जो ये स्लाइड में शो भी हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर एग्जाम में कोई भी ओमेगा सी की वैल्यू आ जाए आपके पास, जैसे 100 हर्ट्ज हो, 200 हर्ट्ज हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना। उसी तरह अपना फिल्टर आपने ड्राइव करना है, जब फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच जाए तो जहां जहां एस है उस एस को उस ओमेगा सी से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल दें। हेलो यस जी सर। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज? ये 2 एग्जांपल्स हैं, आसान है। यस सर। चलें, यस सर। फिर अब आज की आखिरी 2 एग्जांपल हैं, ये प्रॉब्ली आप खुद करेंगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरे पास 2 फिल्टर डिजाइन करने हैं, एक का ऑर्डर 1 है, एक का ऑर्डर 2 है। दोनों के केस में ओमेगा सी जो है 1 है, इसका मतलब है कि आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, ठीक है, आपको एस की फॉर्म में ही आंसर निकालना है। प्लीज इनके मुझे आंसर निकाल दें अभी, और फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। जल्दी से निकाल दें आप सबके सब। k इज इक्वल टू 1 के लिए तो आप बिल्कुल बैठे बैठे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने लिखना है, आपको पता है एक k इज इक्वल टू 1 के लिए पोल्स कहाँ कहाँ होंगे? सर एक सर 1 और प्लस 1 पे, एक प्लस माइनस 1 एक पे। माइनस 1। एग्जैक्टली, तो इसको यहीं पे लिख दें, h ऑफ s इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस 1 इंटू s माइनस 1, ऐसा ही है। यस सर। और उसके बाद उसको मजीद सॉल्व कर दें, h ऑफ s इज इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर माइनस 1, राइट? यस सर। ठीक है, और k इज इक्वल टू 2 के लिए पोल्स कहाँ कहाँ होंगे आपके पास? सर 4 पोल्स 4 होंगे, हाँ, 4 45, 135, माइनस 45 45 और माइनस 135, राइट? माइनस 135। यस यस सर, यस सर। ठीक है, और ये सबके सब मेरा ख्याल है हाफ नहीं होंगे, 0.707 होंगे, तो उन्हें वैसे ही करके लिख लें आप। सॉरी, k इज इक्वल टू 1 के लिए छोटी सी गलती है मुझसे। बेसिकली हमने सिर्फ वो पोल लेना है जो लेफ्ट हैंड साइड पे हो, ओके। इसका मतलब जो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा वो 1 ओवर s माइनस 1 होगा, 1 ओवर s के माइनस 1 नहीं होगा, ओके। यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक ही पोल है जो कि माइनस 180 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। k इज इक्वल टू के लिए लेफ्ट साइड पे 2 पोल्स हैं, एक पड़ा है माइनस 135 पे और एक पड़ा है प्लस 135 पे, ओके। अब इनके कॉस साइन मुझे बता दें, माइनस 135 का कॉस साइन कितना होता है? मेरा ख्याल है दोनों 0.707 होंगे, जी ऐसा सर, ही? क्योंकि कॉस में खत्म होता है ना माइनस, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया s जो y x कंपोनेंट है दोनों का माइनस होगा, y कंपोनेंट प्लस माइनस होगा, ठीक है। माइनस 0.707 माइनस j 0.707 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस 0.707 प्लस j 0.707। यही है सबके पास सोल्यूशन? यस सर, यही है। बस ठीक है, खत्म होगी बात। आपने ये दोनों आपने तो वो क्या है? मैं बताता हूँ, मेरे पास है 1 ओवर s माइनस 0.707 माइनस j 0.707 ब्रैकेट बंद इनटू s माइनस 0.707 प्लस j 0.707 ब्रैकेट बंद डिनोमिनेटर में। एक बार अगर आप शो करा देंगे तो लिख के बोर्ड। फिर मुझे लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड, हम व्हाइट बोर्ड में लिख लेते हैं इसको।
सबको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर हो रहा है। ओके गुड जॉब। 0.7 इस पे लिखना बहुत ही मुश्किल है। प्लस जे 0.7। सबके पास यही सोल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी एच ऑफ एस का? हेलो सर मेरे पास सर लेफ्ट वाली चीज ही नहीं शो हो रही, मतलब लेफ्ट वाली चीज मतलब जो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या लिखा है। बेसिकली वाइट एच ऑफ बोर्ड शो एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर s minus 0.707 minus j 0.707 into s minus 0.707 plus j 0.707। मैंने ये लिखा और कुछ भी लिखा व्हाइट बोर्ड पे। ओके सर। बाकी ये दोनों एग्जांपल्स आप घर बैठ के खुद सॉल्व करें। अगर इसमें कोई इशू है तो फिर मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी के पास तो मुझसे पूछ लिया अभी। अगर नहीं है तो फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। सर आप अभी स्लाइड्स अपलोड कर देंगे? बेटा अभी आधे घंटे में हो जाएंगे स्लाइड्स अपलोड। ओके सर थैंक और सर जो हमारे स्टार्ट वाले लेक्चर्स थे उनकी वीडियोस भी शेयर करते हैं। हाँ मैं उनकी वीडियोस भी कर दूंगा। आप मुझे जरा कुछ 2-3 दिन दे दें क्योंकि वो पुरानी वीडियोस मुझे निकालनी है। वो यूट्यूब पे थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, मैं चाह रहा था एक दफा हम जरा स्ट्रीमलाइन हो जाएं कि हर हफ्ते का काम हम उसी 2-3 घंटे में कर दिया करूँ। उसके बाद मैं पुरानी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर वो जी आपने सर। पहले वाली स्लाइड कहाँ अपलोड की है? पहली वाली स्लाइड नहीं शो हो रही, मतलब मैंने सारी स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं। तो कहाँ पे? जहाँ पे ये वाली स्लाइड्स हैं वहीं पे पहले वाली भी हैं। मैंने हर स्लाइड में उस दिन का वो डेट मेंशन की हुई है। यस सर मिल गई थी। मिल गई कहाँ पे थी मुझे नहीं? ये सितारा बता देंगे आप इन्हें। यस सर। चलें गाइस, फिर अगर आज के लिए और कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर मैं आपकी एक बार अटेंडेंस कर लूँ डाउनलोड। ये व्हाइट बोर्ड खत्म कर दें क्योंकि बच्चे फिर जरा शरारतें शुरू कर देते हैं। ओके चलें गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को। कितने बजे मुझे पहले बता दें। अब 2 बजे। 2 बजे सर। वेडनेसडे को 2 बजे मिलते हैं हम। सी यू देन। अल्लाह हाफिज। जो जी जो का नेट नहीं है रोल नंबर नोट कर लें आप, अगर पेन है तो। जी मेरे पास पेन है। बताएं क्या रोल नंबर है उनका? सर 18 और 30। 18 और 30। और कोई खातून भी थी शायद शुरू में, वो कौन थी? रोल नंबर 50। 50 ठीक है जी, मैं लिख लिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।